Assalamu alaikum. This is Sayyida Mariam Naqvi. On behalf of Youth General Assembly, I welcome you all to this interactive webinar on the topic Demerits of Different Provincial Laws Highlighting Dua Zahra Case. First of all, let me introduce what Youth General Assembly is. Youth General Assembly is the first youth led parliamentary initiative in Pakistan's history, playing an effective role in administrative, political, economic, and social processes while owning the leadership skills of youth. Youth General Assembly takes pride in being the parent organization of three youth led national initiatives, namely Youth General Assembly Legal Forum, Youth General Assembly Business Forum, and Youth General Assembly Media Forum, which have the privilege of working on diverse activities and engaging youth from different academic and professional backgrounds. The topic of the webinar is going to be in the perspective of the Dua Zahra case, which is quite a popular case going on in Pakistan since April. A girl named Dua Zahra goes missing in Karachi, then she is recovered in Lahore. Apparently, there she married a guy named Zahir. A number of legal issues arose. According to him, particularly when Dua's father stated that his daughter is a minor. And according to him, she has been kidnapped by Zahir and his family. The proceedings of the case are still going on, and for this purpose, I'm really honored to have with us our respected speakers, including Mr. Gibran Nasir, who's a human rights activist and a politician, and he's the lead lawyer in this case. He will be joining us in a while. Further, we have Mr. Fahad Ahmed Siddiqui, who is an advocate in Lahore High Court. His expertise specifically includes child custody law and family law. Then we have Mr. Salman Sufi with us, an expert of public policy who has been serving actively in the field of women protection, and he is also the head of Prime Minister's strategic reforms. For today's webinar, we also have with us our moderator, Ms. Mariam Hayat, who is a barrister and an advocate in Lahore High Court. And she has given 14 reported judgments as well, being the editor at Courting in Law and the head of litigation at Kilam Law. She does a lot of pro bono work. So coming over to the topic of the webinar, I would like to request Ms. Mariam Hayat to initiate the discussions with our honorable speakers. अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन। तो मैं इस केस के मुतालिक और जनरली जो चाइल्ड मैरिजेस हैं पाकिस्तान में, इसके मुतालिक कुछ जनरल सवालात करूँगी, एंड देन वी विल आल्सो हैव सम क्वेश्चंस एंड सम डिस्कशन ऑन द पॉसिबल रिफॉर्म्स दैट कैन बी डन फ्रॉम द प्राइवेट एज वेल एज फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर टू बेसिकली कर्ब दिस चाइल्ड मैरिज एक्ट, और ऐसे मुख्तलिफ क्या इक़दामात लिए जा सकते हैं जिसमें पाकिस्तान की ओवरऑल रैंकिंग इन टर्म्स ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन एंड इन टर्म्स ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ children can be improved. मेरा पहला सवाल फाहद साहब से है, और मेरा पहला सवाल ये है कि फाहद साहब, वी ऑल नो दैट फॉलोइंग द 18th अमेंडमेंट 2010 में ये जो इशू है डिवोर्स का, मैरिजेस का, इट डिवॉल्व ऑन टू द प्रोविंसेस। इस सिलसिले में सिंध में जो इस वक्त लॉ है, सिंध मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट है 2000, सिंध मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट है और 2013 का, और पंजाब में पंजाब मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट है 2015 का। सिंध में मिनिमम एज दी गई है 18 साल, पंजाब में दी गई है 16 साल। तो जी 16 साल। थोड़ा सा बिफोर यू मूव ऑन टू द सेलिएंट फीचर्स ऑफ दिस एक्ट, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि जो लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी है इन लॉज, ये कोई मुश्किलात पैदा नहीं करती इन टर्म्स ऑफ केसेस लाइक दुआ ज़हरा, इन टर्म्स ऑफ अदर केसेस? क्योंकि सिंध में एज फ़र्क दी गई है, पंजाब में एज फ़र्क दी गई है, और जहाँ तक मेरी मालूमात है बलूचिस्तान और केपी ने तो इस सिलसिले में लेजिस्लेशन पास ही नहीं की, वो अभी भी 1929 का कानून लेके ही चल रहे हैं। So this lack of uniformity in law, do you think it creates hurdles and it creates problems in cases like Dua Zahra and other child marriage cases? जी, ये सिर्फ हार्डशिप्स नहीं क्रिएट करनी, बल्कि एक तरह से आई अंडरस्टैंड कि दैट बाय डिसफॉर्मिटी ऑफ दीज लॉज बेसिकली वी हैव क्रिएटेड अ सेफ हेवन फॉर चाइल्ड अबडक्शन केसेस। आप शादी के नाम पे, मैरिज के नाम पे इंटाइस अवे करें किसी बच्ची को कराची से एंड देन शिफ्ट टू लाहौर, और यहाँ पे वो स्टेटमेंट 164 के एक मजिस्ट्रेट के सामने दें और उसके बाद आप स्टेटमेंट दे दें कि जी मैं आकिल हूँ, बालिग हूँ, मैंने शादी की है। तो बेसिकली तो हम एक तरह से फैसिलिटेट कर रहे हैं इस क्राइम को, जो कि थ्रू आउट पाकिस्तान, बल्कि नॉट इवन पाकिस्तान, आई वुड बी राइटली सेइंग कि इसमें
आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान इज सिग्नेटरी टू चाइल्ड कन्वेंशन, और उस चाइल्ड कन्वेंशन के अंदर ये मेंशन है जी, कि द मिनिमम एज शुड हैव टू बी 18 इयर्स ऑफ एज। तो मेरी 18 अंडरस्टैंडिंग पे years ये of कि age. देयर मस्ट बी सम यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉज, और थ्रू आउट पाकिस्तान होनी चाहिए। दिस इज द राइट ऑफ द स्टेट बेसिकली टू प्रिस्क्राइब ए पर्टिकुलर एज फॉर मैरिज। और अभी जैसे रिसेंटली फेडरल शरीयत कोर्ट ने मल्टीपल पिटिशंस डिसमिस भी की हैं इस पॉइंट जी, पे कि जी the provisions of child restrained marriage act should be declared un-Islamic and un-Islamic, sorry। तो उस पर उन्होंने कहा नहीं, दिस इज द राइट ऑफ द स्टेट एंड इट इज इन लाइन विद इंजंक्शंस ऑफ इस्लाम टू प्रिस्क्राइब ए पर्टिकुलर एज फॉर मैरिज फॉर माइनर चिल्ड्रन। तो आई अंडरस्टैंड कि अगर ये इस तरह डिस्फॉर्मिटी ना होती तो ये, और लाहौर में या पंजाब में अगर 18 साल एज होती जैसे कराची में, तो ये केस इतना ज़्यादा हाइप क्रिएट कर ही नहीं सकता था। 14 साल की बच्ची को आप यहाँ पे लेकर आए, मैनिपुलेट किया, उसे आपने इंटाइस अवे किया, आप लाहौर ले आए, लाहौर ला के अपने स्टेटमेंट दिलवा दिया और एक मीडिया हाइप क्रिएट हो गई। थैंक्स भी गिवन टू हिज फादर एंड जिब्रान भाई जिन्होंने इस मामले को उठा लिया। अदरवाइज तो ये एक जैसे सुबह शाम यहाँ पे बच्चियाँ कोर्स में आती हैं और उन्हें एक जो बाद में फेस करनी पड़ती हैं कॉम्प्लिकेशंस, वो कंटिन्यू करनी पड़ती। जी। मेरा अगला सवाल सलमान साहब से है, बिकॉज आई एम अंडर द इम्प्रेशन दैट ही हैज टू लीव अर्ली, सो मैं डायरेक्ट टुवर्ड्स जो उनके सवाल है उन पे मूव करूंगी। सलमान साहब, आप इस एरिया में क्या रिफॉर्म्स सजेस्ट करेंगे? रिफॉर्म्स इन टर्म्स ऑफ आपके ख्याल से पुलिस के रोल को किस तरह स्ट्रेंथन किया जा सकता है, प्रोसिक्यूशन के रोल को किस तरह स्ट्रेंथन किया जाता है, और डू यू थिंक हमारे पास प्रॉपर फैसिलिटीज इन प्लेस हैं टू डिटर्मिन फॉर एग्जांपल द एज ऑफ अ चाइल्ड? क्या नादरा रिकॉर्ड्स या जितने भी ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं उनके ऊपर हम ये जो एज डिटर्मिन टेस्ट हैं इनको वैलिड करार देंगे? व्हाट टेक्स प्रेसिडेंट? Thank you very much for having me. I think one thing is very clear from the Dua Zahra's case is that there is a huge lack of coordination between provinces. There is a huge lack of coordination between the judiciary, even of different provinces. Or most importantly, कि जो एक uniformity होनी चाहिए on a very clear issue of marriage कि वो किस साल पे अलाउ होती है और उसके बाद उसका प्रोसेस क्या होता है। इवन निकाह के अंदर, निकाह के फॉर्म के अंदर क्या चीज़ें ऐड होनी चाहिए और निकाह का जो प्रोसेस है उसमें यूनिफॉर्मिटी जो है वो अगर एग्जिस्ट नहीं करती तो उसको जो है स्ट्रीमलाइन करने की ज़रूरत है। आई रिमाइंड यू कि 2014 टू 2017 18 जब पंजाब गवर्नमेंट में वी वर वर्किंग, तो इसमें जो पंजाब स्टेटस कमीशन ऑफ वुमेन है, दे डिड सम ग्रेट वर्क फॉर स्ट्रीमलाइनिंग द निकाह का प्रोसेस। और निकाह के फॉर्म्स के अंदर भी उन्होंने काफ़ी चीज़ें स्ट्रीमलाइन करके उनको क्लैरिफाई किया था जो पहले ये चीज़ें मौजूद नहीं थी। अब जो फेडरल लेवल पे कि जिस तरह आपने भी बताया कि बिकॉज इट्स अ डिवॉल्व सब्जेक्ट, और अब जब जिब्रान के साथ मैं कांटेक्ट में भी था ये दुआ के सिलसिले में, तो उसमें जो मेरी अंडरस्टैंडिंग की जो इश्यूज मैं देख रहा था वो यही था कि चलो अब मैं फेडरल में हूँ तो आई वाज एबल टू कोऑर्डिनेट विद पंजाब गवर्नमेंट एंड सिंध गवर्नमेंट एंड गेट इट डन। लेकिन इट वुडंट बी द सेम सिचुएशन अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं केपी गवर्नमेंट में कांटेक्ट कर रहा होता, तो बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल इश्यूज ऑब्वियसली द इनरोड्स आर लिटिल डिफिकल्ट। सो द इशू हैज टू बी कि ये फेडरल लेवल पे होना चाहिए, और इसमें कम से कम जो आपका स्ट्रक्चर है कि जो बच्चे की सॉरी जो एक एज है एडल्ट की कि भाई जिस एज पे दे कैन कंसेंट टू गेट मैरिड, वो फेडरल लेवल पे उसकी किसी ना किस्म की एक यूनिफॉर्मिटी फेडरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो तमाम सूबों को साथ ला के तो इस चीज़ पे एग्री करवाए कि जी किस एज पे जो है वो एक शादी अलाउड है। और उसके बाद अगर नादरा एक चीज़ सर्टिफाई कर रही है, नादरा के सिस्टम मौजूद हैं और उसके बाद बे फॉर्म का एक सिस्टम मौजूद है जो कि एग्जिस्ट करता है, तो उसको अगर एक बेस लाइन रखा जाए और उसके अलावा किसी भी चीज़ में फिर जाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए कि आपको डीएनए टेस्ट करवाने पड़े या आपको उसकी बोन डेंसिटी करवाने पड़े या आपको इस तरह, क्योंकि ये चीज़ें आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू कि these facilities are not going to be available to thousands of other children who are facing the same issue. ये इशू तो हाईलाइट हुआ तो उसके में ये सारी चीजें हो गई, लेकिन अभी भी कई ऐसी बच्चियां होंगी जिनके साथ ये ज्यादती हो रही होगी लेकिन उनको कोई ऐसा मैकेनिज्म मौजूद नहीं है। तो ये यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए एक लोकल लेवल तक ये इंफॉर्मेशन जानी चाहिए कि आपके जो निकाह ख्वाह हैं वो रजिस्टर होने चाहिए, हमें लाइक प्रॉपर एक पोर्टल होना चाहिए जो कि हम फेडरल गवर्नमेंट में इस वक्त एक नादरा के साथ हम काम कर रहे हैं 2-3 इस तरह की इश्यूज के ऊपर कि जिसमें हम एक ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव्स हों कि जो कि हर सूबे के अंदर हों कि जिनका नाम पब्लिकली अवेलेबल हो कि जो कि इस चीज़ को एंडोर्स करें कि भाई ये चीज़ जो है निकाह नामे के अंदर अगर आप कोई साइन कर रहे हैं
तो वो निकाहनामा के अंदर ये चीजें मौजूद होनी चाहिए। बच्ची की या बच्चे की एज कंफर्म करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। So we're working on that. Lekin again, we are dependent on the provinces to enact them as well. So hopefully by the end of this year, inshallah ta'ala, we should be able to come up with something very concrete on it. लेकिन इसमें again, it has to be something which covers all the provinces and not just something which requires a federal intervention every time. जी 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 आई थिंक सलमान जी, थैंक यू फॉर योर कमेंट सलमान साहब। और सलमान साहब, इसमें मैं एक और चीज भी ऐड करना चाहूंगी। आई थिंक इन टर्म्स ऑफ द अवेयरनेस ऑफ द लॉ उस एरिया में भी बहुत कमी है। जैसा हम लॉ में सेलिएंट फीचर्स बाद में डिस्कस करेंगे। लॉज में बहुत ज्यादा ऐसी प्रोविजंस है कि जो निकाह खान आपका निकाह वो पढ़ा रहा है, अगर उसको लग रहा है लड़के या लड़के की कम उम्र है, तो ही सपोज टू आस्क फॉर देयर आईडी कार्ड, ही सपोज टू आस्क फॉर सम सॉर्ट ऑफ एविडेंस कि जी मुझे बताएं, मुझे ये इस बात का शक है या मुझे इस बात का डर है कि लड़का या लड़की अंडर एज है। तो ही हैज ऑल द पावर्स अंडर द लॉ कि उनका वो आईडी कार्ड देखें या कुछ करें। तो आई थिंक इस एरिया में इन टर्म्स ऑफ अवेयरनेस ऑफ द लॉ भी बहुत ज्यादा कमी है, इसलिए मोस्ट ऑफ द पीपल जस्ट गेट अवे विद इट। जैसा आपने बिल्कुल ठीक फरमाया, ये केस ज्यादा हाईलाइट हुआ बिकॉज ऑफ द परसिस्टेंस ऑफ पेरेंट्स एंड सिमिलरली बिकॉज दे गॉट अ गुड लीगल टीम। वरना तो लोगों को पता ही नहीं होता है, दे एंड अप गेटिंग स्कॉट फ्री। तो इसमें पुलिस का रोल भी आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है। जी बिल्कुल। ये जो असल जो इश्यूज हैं ये सिर्फ इसी सिलसिले में नहीं, आप पाकिस्तान के किसी भी लॉ को देख लें तो उसमें अगर आप अपने ही एरिया के को 3-4 थानों में अगर चले जाएं तो उसमें भी आपको हर किस्म के लॉ में डिफरेंट इंटरप्रिटेशन मिलेगी। इट विल ऑल डिपेंड ऑन हु यू नो एट द थाना लेवल। जो अपने एरिया का जो थानेदार है ना, वो अपने एरिया का वजीर आला है, वो अपनी इंटरप्रिटेशन के हिसाब से चलता है, वो अपने इन्फ्लुएंस के हिसाब से चलता है, और आपकी उसके ऊपर होता है कि आप कितना उस पर इन्फ्लुएंस करवा सकते हैं टू गेट द केस रजिस्टर्ड अकॉर्डिंग टू यू। सो दैट इज द वेरी पर्टिनेंट पॉइंट एंड दैट इज एग्जैक्टली द इशू कि आप लॉज बना लें, आप उसमें जितना भी कर लें, लेकिन जब तक वो निचले लेवल पे उसकी इम्प्लीमेंटेशन और फिर चेक एंड बैलेंस मौजूद नहीं होगा कि अगर पुलिस वाले या निकाह खान जो है वो उस रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे तो उन पे चेक एंड बैलेंस कौन रख रहा है। और उन पे चेक एंड बैलेंस अगर कोई रख रहा है तो वो इस सेंस में रखे कि वो ताकि एक अनदर लेयर ऑफ ब्यूरोक्रेसी ऐड ना हो, लेकिन उसमें कम अज कम सिटीजन्स की फैसिलिटेशन भी रखी जाए कि ये इस तरह के सिस्टम ना आए कि आपने अगर निकाह खान के ऊपर चेक रखना है तो आप निकाह रजिस्टर करवाने के लिए आपको 3 जगह पे जाना पड़े ताकि आप मेक श्योर करें कि निकाह सही जगह पे सही तरह हुआ है। तो वो इट इज अ वेरी वेरी बिग ग्रे एरिया दैट नीड्स टू बी वर्कड ऑन विद सिविल सोसाइटी एंड विद द गवर्नमेंट टेकिंग द लीड कि भाई जो आपके लोकल लेवल पे इन्फोर्सर्स हैं, जो आपके निकाह खान हैं, जो आपके एसएचओज हैं, उनके ऑफिसेज में क्लियर डायरेक्शंस जो हैं वो प्रिंटेड लगी हों ताकि उनको भी पता हो कि जी दीज आर द डूज, दीज आर द डोंट। और जो सिटीजन्स वहां पे जा रहे हैं उनको भी पता हो कि जी अगर ये इसके हिसाब से काम नहीं हो रहा तो आप जो है उस पर रिपोर्ट कर सकते हैं। आई गिव यू अ सिंपल एग्जांपल कि आई मीन लाइक इट इज एज सिंपल एज दैट कि अगर आप किसी के बारे में, जिस तरह अब आप कभी कॉर्पोरेट किसी वर्ल्ड में in any corporate interaction they give you a simple 800 number के पे report if you don't get a receipt। अब वो एक छोटा सा कदम है, लेकिन उसमें ये होता है कि अगर आपको पता होता है जो मैनेजर आपकी रिसीट इशू कर रहा है उसको पता है कि अगर मैं नहीं इशू करूंगा तो उसको जो है मुझे जुर्माना पड़ेगा या मैं फायर हो सकता हूँ। लेकिन क्योंकि पब्लिक ऑफिशियल्स की इतनी वो छूट है इस तरह की चीजों के अंदर, अकाउंटेबिलिटी में उसका इतना लंबा प्रोसेस है हायरिंग एंड फायरिंग कि वो उस पर अमल करते वक्त उनको बहुत टाइम लगता है और उसमें जो विल पावर है उनकी वो खत्म हो जाती है। सो दिस एलिमेंट हैज टू बी catered for ताकि we can make sure that these kind of issues don't pop up. I think Maria is disconnected, so I think Mariam, if you can take over. यस। अच्छा, मुझे आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये करना था कि पाकिस्तान ने जो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चाइल्ड उसको रेटिफाई किया 1990 में। तो पाकिस्तान pledged commitment to protect the rights of children. The convention clearly states that for the purposes of present convention, a child means every human being below the age of 18 years, unless under the law applicable to the child, majority is attained earlier. तो इस पर्सपेक्टिव में क्या कहना चाहेंगे आप?
जो बिल्कुल पाकिस्तान ने जो उसकी इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं, पाकिस्तान हैज टू टेक सिग्निफिकेंट स्टेप्स इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि द ratification does not just limit itself to the papers or the the documentation. It has to be properly implemented. उसमें जो child protection bureaus हैं हमारे जो काम कर रहे हैं, they are a major part of it and they must be consulted and they must be strengthened. जिस तरह ये दुआ के केस में भी जो सिंध और पंजाब की जो coordination है, they all of these provinces have to come up and the federal government has to take the lead in it. कि भाई their coordination has to be increased. And plus there has to be a hotline established between all of these major departments. जैसे child protection bureau है, social welfare department है, और इस तरह के जो departments हैं, they have to be connected with each other ताकि कोई भी इस तरह का inter provincial case आए तो उसमें एक centralized body हो कि जो कि इसके ऊपर काम कर रही हो. जिस तरह I'll give you an example of the US कि जब when they made the FBI, the reason to make FBI was because जब एक शख्स एक क्राइम करके स्टेट बाउंड्री को क्रॉस करता है तो वो फिर उसमें फिर जो स्टेट जिधर से उसने क्राइम किया होता है उनकी लिमिटेशन स्टार्ट हो जाती है कि वो दूसरी स्टेट से कैसे कोऑर्डिनेट करें. तो फेडरल लेवल पे जिस तरह FIA मौजूद है, फेडरल लेवल पे जिस तरह की और ऑर्गेनाइजेशंस मौजूद हैं, तो इस तरह के इश्यूज के लिए भी एक फेडरल ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है जो कि इन प्रोविंसेस के दरमियान, इन डिपार्टमेंट्स के दरमियान कोऑर्डिनेशन करे और हर केस को जो उसके मेरिट पे उस हिसाब से फास्ट मूव करवाए ताकि उसमें ये जरूरत ना हो कि हर केस जो है वो उसमें जिब्रान को इंटरवेंशन की जरूरत है कि वो केस उसका कर रहा है और फिर वो उसमें फिर कोई सलमान साहब होने चाहिए कि जो कि फेडरल लेवल पे उनको असिस्टेंस कर रहे हैं. तो इट हैज टू वर्क विद इन द सिस्टम. इसमें दुआ जैसी बेशुमार और जो केसेस हैं वो दे मस्ट गेट उसे कहते हैं द फैसिलिटी फ्रॉम द स्टेट विद इन द सिस्टम ताकि उनको इस तरह की जो है वो जब तक कवरेज ना मिले या जब तक उनको इस तरह की अटेंशन ना मिले तो उनका जो केस है वो फंसा है. तो दैट्स व्हाई देयर हैज टू बी अ सेंट्रलाइज्ड बॉडी फ्रॉम द फेडरल. सलमान साहब, इस सिलसिले में आई थिंक जो प्रोविंशियल लेवल में मुख्तलिफ चाइल्ड प्रोटेक्शन एजेंसीज काम करती हैं, आई थिंक उनको भी एक पिवटल रोल जी मैंने उन्हीं का नाम लिया था. मैंने चाइल्ड भी प्ले करना चाहिए कि इन टर्म्स ऑफ providing the children with a free shelter. I think some of them are already working on it, but I think उनको भी एक मेजर और एक pivotal role play करना चाहिए in all such cases. जी चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का ही मैंने आई थिंक आप उस डिस्कनेक्टेड थी तो मैंने चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरोज की बात कर रहा था कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरोज और दारुल अमान्स ऑफ ईच प्रोविंस हैव टू बी कनेक्टेड क्योंकि ये सिर्फ बच्चों की इस तरह के मामले नहीं, इस तरह के और बहुत मामले हैं जो कि आते हैं और उसमें डिपार्टमेंट्स वोंट टॉक टू ईच अदर. उनको रिक्वेस्ट करनी पड़ती है हायर लेवल से कि जी अब आप कांटेक्ट करें सिंध से, अब सिंध को कहना पड़ता है आप कांटेक्ट करें पंजाब से. देयर हैज टू बी अ यूनिफाइड बॉडी which exists between the provinces, which is closely coordinating with all of these cases and sharing the information as it happens, ताकि a higher level intervention is not required in every case. The citizens sorry. Ji, thank you, Salman Saab. It was a pleasure having you on the panel, and we've greatly enjoyed your comments and your feedback regarding this. Thank you very much for having me. जिब्रान साहब, मेरा अगला सवाल आपसे है, अगर आप भी अगर क्विकली प्लीज कमेंट कर दें, बिकॉज आपके आने से पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि 18वीं तरमीम के बाद पंजाब का लॉ फर्क है, सिंध का लॉ फर्क है. सिंध में मिनिमम एज फर्क दी गई है, पंजाब में फर्क दी गई है, और KP और बलोचिस्तान में तो रिसेंट लेजिस्लेशन ही नहीं हुई इस मामले में. तो आपके ख्याल से बिकॉज ऑफ दीज लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन लॉ एंड बिकॉज ऑफ दीज डिफरेंसेस इन लॉज, आपके ख्याल से ये एक हिंड्रेंस पैदा करते हैं दुआ ज़हरा और मुख्तलिफ चाइल्ड मैरिज एक्ट्स में कि जस्ट टू अवेड एक प्रोविंस में शादी कर दी जाती है, एक दूसरे प्रोविंस में और कर दिया जाता है. तो आप जरा जस्ट अ क्विक कमेंट मैं आपसे भी लेना चाहूंगी सिंस यू आर लीडिंग लॉयर के ये लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन लॉ ये किस हद तक हिंड्रेंस होती है इस तरह के केसेस में. तो जी सबसे पहले तो शुक्रिया मधु करने के लिए इस कमेंट पर. मेरे नज़दीक हमारे यहाँ लॉ में इतनी इनकन्सिस्टेंसी नहीं है. जो क्राइसिस हमारा असली है कंसिस्टेंसी की लैक होना जुडिशियल इंटरप्रिटेशन में और जुडिशियल अप्रोच के अंदर. मैंने सिंध हाई कोर्ट से 17 साल या 16 साल पे होने पे बच्ची को सेटेड लिबर्टी होते देखा हुआ है चाइल्ड मैरिज केस में, और मैंने इसी सिंध हाई कोर्ट से 17.5 साल की बच्ची को 6 महीने के लिए शेल्टर होम जाते देखा है कि तुम 18 की अभी हुई नहीं हो, तुम अपनी मियाँ से नहीं मिल सकती. ये शेल्टर होम के अंदर हिदायत सुनी है
कि जो मैरिज की विक्टिम है वो अपने हस्बैंड से मिल सकती है। और मैंने इसी सिंध हाई कोर्ट के अंदर ऐसे ऑर्डर्स देखे हैं कि जो मैरिज की विक्टिम है ना वो अपने एलिजिड हस्बैंड से ना उसके किसी रिश्तेदार से मिल सकती है। तो एक लगता ऐसा है कि एवरी जज ब्रिंग्स अ होल डिफरेंट लेवल ऑफ पर्सनल, रिलीजियस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल वैल्यूज टू द बेंच, एंड दैट इज वेरी अलार्मिंग, दैट इज वेरी कंसर्निंग। हमारे यहाँ अगर जुडिशल अप्रोच में कंसिस्टेंसी आ जाएगी, आपको फैसले मिलेंगे कि 13 साल की बच्ची है, प्यूबर्ट हो चुकी है, तो कोई जज साहब अपनी तरफ से बैठ के शरीयत को इंटरप्रेट करेंगे और कहेंगे कि जी शादी जायज़ है। और कोई जज साहब उसी साल के अंदर कह देंगे कि जी अभी तो बच्ची 15 की भी नहीं हुई, आई डोंट थिंक इट इज़ द राइट एज टू एक्सरसाइज प्यूबर्टी, तो इसलिए ये ऑफेंस बनता है। जहाँ तक आप लॉ की बात करेंगे, लॉ में काफ़ी हद तक कंसिस्टेंसी है। देखिए, 2 तरह की चाइल्ड मैरिजेस होती हैं। एक होती है विद द हेल्प और कंसेंट और फैसिलिटेशन ऑफ द नेचुरल गार्डियन ऑफ द चाइल्ड, यानी कि जहाँ छोटी बच्ची की शादी उसके ही वालिदैन करा रहे हैं, उनकी सरपरस्ती में हो रही है। फिर एक आपके पास 2 केसेस हैं जो बहुत ज़्यादा तादाद में है और अलार्मिंग तादाद से बढ़ रहे हैं, कि जहाँ बच्ची अबडक्टीज हैं और किडनैप्ड हैं। जो उसके लिए रेलेवेंट फिगर है वो 16 है। अब कानून कहता है कि 16 साल से कम उम्र बच्ची अगर घर से कोई ले जाए, बेशक हंसी खुशी, वो किडनैपिंग है। फिर कानून कहता है कि पूरे पाकिस्तान में अगर आप देखेंगे, सिंध में तो 18 है तो 16 डेफिनेटली कवर्ड है, कि 16 साल से कम उम्र बच्ची से अगर आप शादी करेंगे तो वो चाइल्ड मैरिज है, तो वहाँ भी 16 आ गया। फिर कानून कहता है कि अगर आप 16 साल की बच्ची के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करेंगे, बल्कि अब तो जो रेप की नई डेफिनेशन है उसमें इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट इट हैज टू बी एन इंटरकोर्स, तो बच्ची की कंसेंट नहीं है, वो सेक्सुअल रिलेशनशिप जो है वो रेप में काउंट होगा। तो 16 बहुत हद तक हमने एक एज निकाल ली है पाकिस्तान के लिए। यहाँ जिस आप केस की बात कह रही हैं, जिस बच्ची का आप नाम ले रही हैं, उसका तो वाक़े के वक्त उम्र 13 साल थी। शी वाज अबाउट टू टर्न 14, ड्यूरिंग हर अबडक्शन पीरियड शी टर्न 14। हमारे यहाँ इशू ये आया है कि एक जुडिशल इंटरप्रिटेशन के शरीयत क्या कहती है और कावानीन क्या कहते हैं, उसकी इंटरप्रिटेशन क्या करनी है। दूसरा, जुडिशल इनकंसिस्टेंसी रिगार्डिंग द स्टेटमेंट ऑफ द अबडक्टी। देयर आर अ प्लॉथरा ऑफ जजमेंट्स जो कि कहते हैं दैट an abductee minor who is under 16, her mental state is immaterial. Whatever she may say regarding under what circumstances she went, it would be considered abduction. However, there are courts who on statement of a minor would give her all the weight in the world and let set her at liberty. तो ये क्राइसिस इस वजह से ज़्यादा पैदा हो रहा है, इसलिए पुलिस भी कंफ्यूज है, इसलिए हमारे ब्यूरोक्रेटिक इदारे भी डरे रहते हैं। और ब्यूरोक्रेटिक इदारे तो इतने डरे रहते हैं कि वो अगर ऑर्डर में लिखा है ना कि आप अपने उल्टे पैर के जूते का तस्मा बांध लें, तो वो सीधे पैर के जूते का तस्मा नहीं बांधेंगे जब तक वो भी ऑर्डर में ना लिखा हो। यू लिटरली हैव टू होल्ड देयर फिंगर। तो इतने घबराए भी रहते हैं जुडिशल ऑर्डर से हमारे ब्यूरोक्रेट्स जो हैं। तो ये क्राइसिस वहाँ से पैदा हो रहा है। आप जुडिशल इंटरप्रिटेशन में कंसिस्टेंसी ले आइए कि आपने किडनैपिंग को कैसे देखना है, अबडक्टी की स्टेटमेंट को कैसे देखना है, आपने चाइल्ड मैरिज को कैसे देखना है। और मजीद ये जो एक तमाशा है नादरा डॉक्यूमेंट्स का और उसको नलिफाई करने की कोशिश करना थ्रू मेडिकल बोर्ड। डिजिटाइजेशन के दौर के अंदर जहाँ बहुत कम मुल्क हैं जहाँ पे नादरा जैसी फैसिलिटी है, वहाँ पे आपका बर्थ सर्टिफिकेट, आपका बेफॉर्म, आपका स्कूल रिकॉर्ड रद्द कर दिया जाता है और हम एक ऐसे टेस्ट को प्रेफरेंस देते हैं हेबियस कॉर्पस पिटिशंस में जो कि टेंटेटिव फाइंडिंग्स होती हैं, जिस टेस्ट के बारे में खुद कहा गया है कि इट गिव्स द रेंज ऑफ 1 to 2 years. And it is a very funny thing that in habeas corpus petitions, medical report seems to carry more weight than Nadra, but when it comes to trial, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ड्यूरिंग ट्रायल इफ नादरा डॉक्यूमेंट्स आर इशूड मच बिफोर द इंसिडेंट ऑफ द क्राइम, तो फिर मेडिकल बोर्ड उसको ओवरराइड नहीं कर सकता, फिर आप नादरा पे रिलाई करेंगे। तो आधे केस को आप मेडिकल बोर्ड पे चलाना चाहते हैं जो अबडक्शन और रिकवरी से रिलेटेड है, और फिर जब अबडक्शन और रिकवरी के बाद कन्विक्शन पे आते हैं तो फिर बाकी का आधा केस आप एक और प्रिंसिपल पे चलाते हैं। तो ओनस लाई करता है मेरे ख्याल में मुल्क की अदलिया पे, और मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जब तक वुमेन्स प्रोटेक्शन एक्ट 2006 और क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 में आए थे, जिसके बाद आपने चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले से सेक्सुअल अब्यूज के कवानीन आप लेके आए हैं, पोर्नोग्राफी के कवानीन लेके आए हैं, एक्सपोजर टू सेडक्शन के कवानीन लेके आए हैं, इनकी नज़र के अंदर और जो एक्सेप्शंस एग्जिस्ट करती थी हदूद ऑर्डिनेंस में रेप के ऑफेंस में, जो कि रिपील करके निकाल दी गई हैं आफ्टर वुमेन्स प्रोटेक्शन एक्ट, उसके तहत एक नई कंसिस्टेंट ज्यूरिस्प्रूडेंस हमारे सामने नहीं आई है एंड जुडिशियल कंफ्यूजन बहुत सिवियर है।
जी जी, थैंक यू थैंक यू। इसी से मेरा एक और रिलेटेड सवाल है, कंसिडरिंग मतलब चलो जनरली हम चाइल्ड मैरिज केसेस के बारे में बात करते हैं कि अगर बच्ची और एनीवन फॉर दैट मैटर गोज मिसिंग इन वन प्रोविंस और वो शादी जाके कॉन्ट्रैक्ट करती है दूसरे प्रोविंस में, तो इस सिलसिले में किस प्रोविंस का कानून अप्लाई करता है? और मतलब कि अगर कॉज ऑफ एक्शन एक और प्रोविंस में हुआ है, व्हाट डिटरमिन्स द जुरिस्डिक्शन इन सच केसेस? डेविल लाइज इन द डिटेल जी। आप कवानीन अगर पढ़ेंगे तो खूबसूरती कम से कम सिंध चाइल्ड मैरिज स्टेट एक्ट की बात है कि उसका सवाल का जवाब जो है आपको पहले 2 लफ्ज में मिल जाता है, सिंध चाइल्ड। The law, the Sin Child Marriage Restraint Act, does not at all focus on the place of marriage. It does not focus on कि शादी हॉल कौन सा था, या वो मस्जिद कौन सी थी, या वो चर्च कौन सा था, या वो मैदान कौन सा था, या वो घर या दफ्तर कौन सा था। या निकाह वो कहाँ लॉ साइन कहता वो लॉ कहता है कि बच्चा कहाँ का था। आप जब रूल्स पढ़ते हैं, रूल नंबर 5 है सिन चाइल्ड मैरिज स्टेट रूल्स का कि किस मैजिस्ट्रेट के सामने एप्लीकेशन दी जा सकती है रिगार्डिंग अ चाइल्ड मैरिज और टू बी सोलमनाइज चाइल्ड मैरिज। तो उसमें 3 जुरिस्डिक्शंस हैं। एक है वेयर द चाइल्ड यूजुअली रिजाइड्स। तो इवन व्हेन यू अबडक्ट अ चाइल्ड फ्रॉम कराची एंड टेक हर टू लाहौर, her actual usual place of residence as per Nadra, birth certificate, school record is Karachi. So where the child resided here, the marriage may have taken place in Lahore, jurisdiction, residence से बच्ची की location के ऊपर local court ले सकता है। दूसरी place of jurisdiction है where the accused resides or works. So even if the accused resides or works in Sindh, then the Sindh court can also take cognizance. And तीसरा है कि where the child resides during the pendency of the trial. So for example, a kidnapping took place from Punjab और पंजाब में शादी हो गई, बट उसके बाद जो चाइल्ड मैरिज का विक्टिम है, किडनैपिंग के ऑफेंस से पता चला कि चाइल्ड मैरिज भी आई है, वो सिंध में रह रही है, तो उस पेंडेंसी के अंदर भी क्योंकि बच्ची की रेजिडेंस यहाँ पे है, हमारा कोर्ट ले सकता है। जुरिस्डिक्शन के हवाले से रूल्स बहुत क्लियर है। अनफॉर्चुनेटली हम सिर्फ वो 3 पेज का एक्ट पढ़ते, रूल्स हमारे 16 पेज के, दे आंसर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। जी, तो आपके आपके बेसिकली कहने का मतलब है कि लॉ इस मामले में काफी फ्लेक्सिबल है और किसी एक जुरिस्डिक्शन में उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता। सिंध का लॉ, मैं पंजाब के लॉ पे कमेंट नहीं कर सकता। आई थिंक सिंध इज द ओनली प्रोविंस व्हिच एट टाइम्स फील्स ओवर लेजिस्लेटेड। हम लोग बहुत प्यारे खूबसूरत कानून बनाते हैं, एनफोर्समेंट के हवाले से अनफॉर्चुनेटली द लॉज आर नॉट वर्थ मोर देन द पेपर दे आर प्रिंटेड ऑन। फहद साहब, मेरा अगला सवाल आपसे है, इन मोस्ट ऑफ द चाइल्ड मैरिज केसेस द क्रूशियल क्वेश्चन इज ऑलवेज द एज ऑफ द चाइल्ड। इसमें जैसा जिब्रान साहब ने अभी फरमाया कि एक चाइल्ड की एक मेडिकल चाइल्ड की एज डिटरमिन करने का टेस्ट होता है, उस सिलसिले में आपके क्या कमेंट है? ये वैलिड टेस्ट है? शुड दिस टेक प्रेसिडेंस ओवर द ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, नादरा रिकॉर्ड्स? डू वी हैव प्रॉपर इक्विपमेंट्स टू डिटरमिन द टेस्ट? और जब एक नादरा का रिकॉर्ड या एक ऑफिशियल रिकॉर्ड इन टर्म्स ऑफ द बे फॉर्म्स, इन टर्म्स ऑफ द बे बर्थ सर्टिफिकेट एक चीज इंडिकेट कर रहे हैं, तो फिर इन मेडिकल टेस्ट की क्या सिग्निफिकेंस रह जाती है? जी फहद साहब, डू वी हैव देखिए, यू? मेरी नज़र में तो मेडिकल टेस्ट की सिग्निफिकेंस तो उस वक्त होगी जब नादरा रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। जी, आवाज़ आ रही है? हेलो जी जी जी, बिल्कुल। मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक तो जी नादरा के मौजूदगी में, जैसे जिब्रान साहब ने कहा है कि इस जैसा इदारा तो अभी मौजूद ही नहीं है। अगर आपने नादरा रिकॉर्ड को सिर्फ बच्चों की बर्थ सर्टिफिकेट्स वगैरह या जो है इनको आपने सिर्फ एडमिशन इन स्कूल्स वगैरह में इस्तेमाल करना है और या शादी वगैरह के लिए इस्तेमाल करना, और जब इस तरह की सिचुएशंस अराइज होती हैं उसमें हमें इस महकमे को अबॉलिश कर देना चाहिए टू द एक्सटेंट ऑफ गर्ल्स। गॉड फॉरबिड इस तरह की सिचुएशन हो रही है। और जैसे जिब्रान साहब ने बात किया, लाइक टू सेकंड हिम, जो हमारी जुडिशियल इंटरप्रिटेशन है, स्पेशली सुपीरियर जुडिशरी की, वहाँ से कंफ्यूजन। 16 ईयर्स की बात करें, 16 साल इज इन कॉन्फिडेंस विद द इस्लामिक इंजंक्शंस एज वेल। हमारी एक जजमेंट आ गई सुपीरियर जुडिशरी की 2004 में, और उसमें एक ऑब्जर्वेशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दे दी कि जी ये चूंकि बच्ची है और उसको बुलाया तो वली की जरूरत नहीं है, तो वी नीड टू फिकर कॉन्स्टिट्यूशन उसके हवाले से कुछ भी उसमें ऑब्जर्वेशन नहीं थी। एक आपके पास नादरा का इदारा है, आपने उससे कानून कर दिया, आपने ओसिफिकेशन टेस्ट में ले गए। अब जो सिचुएशन इस वक्त प्रेजेंटली आज राइज हुई लाहौर में, एक ओसिफिकेशन टेस्ट हुआ सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पे, जिसमें बच्ची की पहली ओसिफिकेशन टेस्ट में 17 साल एज आ गई।
फिर सिंध हाई कोर्ट के ऑर्डर को सेल किया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उनकी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक हमने चैलेंज किया। फिर सेकंड मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट हुआ। मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट होने के बाद 10 डॉक्टर ने रिपोर्ट दे दी कि शी इज नियर टू 15 इयर्स। अब जो आज सिचुएशन डेवलप हुई मजिस्ट्रेट साहब की कोर्ट में वो यही थी कि उनकी तरफ से एक एप्लीकेशन आ गई दुआ ज़हरा की तरफ से कि जी बच्ची बालिगा है, सुई जुर्रे से, हमें इजाज़त दीजिए हमने ओसिफिकेशन टेस्ट दोबारा करवाने, क्योंकि ओरिजिनल टेस्ट जो हुआ वो सिंध में साजबाज करके हासिल किया गया। अब सवाल तो यहाँ पे ये पैदा होता है मैडम कि जब एक दफ़ा सिंध हाई कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दे दी, डिवीजन बेंच ऑफ द सिंध हाई कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दे दी कि शी इज़ अ माइनर चाइल्ड, तो फिर मैजिस्ट्रेट साहब के पास तो जुरिसडिक्शन ही नहीं है कि वो उस एप्लीकेशन को एंटरटेन करें। उन्होंने ना सिर्फ एंटरटेन किया बल्कि हमें नोटिस भी इशू कर दिए कि आप जवाब दें इस चीज़ का। तो हमने ये चीज़ उनके सामने भी रखी कि जनाब ऑलरेडी ऑब्जर्वेशन आ चुकी है और ऑलरेडी 164 का बयान बच्ची का रिकॉर्ड हो चुका है, ऑलरेडी मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट हो चुका है। जब तक वो मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट इन फील्ड है, जब तक वो मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट चैलेंज नहीं की जाती, आप तब तक उसी मेडिकल बोर्ड की हुक्म ही नहीं पास कर सकते, मेंटेनेबल ही नहीं है वो एप्लीकेशन। थैंक्स टू अल्लाह कि उन्होंने इस चीज़ को कंसिडर किया और उस चीज़ को एक्नॉलेज करते हुए उन्होंने मेडिकल बोर्ड की उनकी जो एप्लीकेशन है वेबसाइट को डिस्कस कर दी। सिमिलर वाज द केस 164 का उन्होंने बयानों के ऊपर फंस की बात की, जी 164 का हमने बयान करवाने। तो बेसिकली अगर हमारी जुडिशरी इन लाइन हो या वीएन इस हवाले से क्लियर हो तो वो इस तरह की इंटेलिजेंस होनी ही नहीं चाहिए, इन लिमिटेड डिसमिस होनी चाहिए ऐसी एप्लीकेशंस। अनफॉर्चुनेटली सुपीरियर जुडिशरी हमारी एक लाहौर में बैठी है जो आप कह लें कंफ्लिक्ट ऑफ जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस है, वो कंफ्यूजन ज़्यादा इंक्रीज करती हैं एज पर माय अंडरस्टैंडिंग। जी जिब्रान साहब, मेरा अगला सवाल आपसे है, नॉर्मली इन सच केसेस जो कोर्ट्स की प्रैक्टिस होती है कि वो बच्चे की स्टेटमेंट ऑन फेस वैल्यू ले लेते हैं। आई थिंक आपने पहले भी इस पे अपने कमेंट्स भी रेज किए थे, विदाउट एनी फर्दर प्रोबेशन और विदाउट एनी फर्दर एक्सरसाइज। तो इस सिलसिले में आप क्या कहना चाहेंगे? डज दिस नॉट डिफीट द एंटायर एक्सरसाइज देन? देखिए, आपने पहले भी कहा कि इट फील्स लाइक दैट आवर जजेस ब्रिंग देयर ओन पर्सनल रिलीजियस एंड पॉलिटिकल एंड सोशल वैल्यूज टू द बेंच, एंड विच इज वेरी अलार्मिंग। आप 22 करोड़ के मुल्क के लिए फैसले कर रहे हैं। मुल्क चलते हैं ऑर्डर्स के ऊपर और ऑर्डर्स आते हैं यूनिफॉर्मिटी से। आपने तमाम बच्चों की जिंदगी बर्बाद करनी है तो कम से कम उसमें भी कर रहे हैं और तमाम बच्चों की जिंदगी बर्बाद करते हैं। अगर आपने बच्चों की जिंदगी बचानी है तो उसमें भी कंसिस्टेंसी शो करें और फिर तमाम बच्चों की जिंदगियां बचाएं। ये शुरू के अंदर जो है सलमान साहब आपके साथ थे, उसमें कोई दो राय और शक नहीं है। तो बिकॉज हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग नहीं हुई है, हम लोग इंडिविजुअल से रिलाई करते हैं। तो अगर मैं इस वक्त कहूँ कि वफाकी हुकूमत के अंदर मुझे एक सेंसिटिव इंडिविजुअल चाहिए जो वुमेन एंड चाइल्ड की प्रॉब्लम समझता है, तो आई कैन ओनली थिंक ऑफ सलमान साहब। या इस वक्त व्हेन आई वाज ट्राइंग टू फाइंड I also not only needed a competent lawyer, but I also needed a lawyer. It has been a pleasure and honor to have worked with Fahad Ahmed Siddiqui साहब, जिस तरह से इन्होंने और के अंदर इसको बट जजेस जो हैं इस बात को एक तरीके से अपने बच्चे हो या खदशा हो कि ये बच्चा है, तो वी नीड टू गेट टू लाहौर में रिकॉर्ड हो गया इस केस के अंदर, जो कि 26 अप्रैल को हुआ था। जब मैं सिंध चाइल्ड मैरिज के चलता है और नजर आ तरीकेकार, जिस तरीकेकार से बच्ची का स्टेटमेंट रिकॉर्ड होना है, वो तरीकेकार क्या है, वो हालात क्या है, कोर्ट रूम की स्पेसिफिक लोकेशन, कोर्ट रूम के अंदर कितने लोग मौजूद थे। इट इज नॉट जस्ट कि अक्यूज था कि नहीं था, कितने और गैर जरूरी लोग थे। जब ये तमाम चीजें सिंध चाइल्ड मैरिज के रूल्स में दी गई हैं कि इन सेटिंग्स के अंदर बच्ची का रिकॉर्ड होगा, तो फिर उस बयान की क्या हैसियत है जो कि ऑलरेडी लाहौर में 2 महीने पहले आपने 164 रिकॉर्ड किया, चूंकि उसको आप उस वक्त अडल्ट तस्वर कर रहे थे। एक लैक ऑफ सेंसिटिविटी है, एक लैक ऑफ ट्रेनिंग है, और कहीं कहीं तो मैं कहूंगा कि जजेस आर एट सम पॉइंट इन लेवल abusing the judicial discretion by again imposing their own personal values. Like I said, एक सिंध हाई कोर्ट है, 6 केसेस में 6 मुख्तलिफ फैसले नहीं आने चाहिए हेबियस कॉर्पस पिटिशंस में इन लाइट ऑफ द मेडिकल एविडेंस। इस केस में भी जो दुआ ज़हरा केस है, जो पहला आपका हेबियस कॉर्पस था जिसमें बच्ची को सेट एट लिबर्टी किया गया, उसमें भी मेडिकल ने उसको 16-17 कहा था, 18 नहीं कहा था। वो तब भी माइनर थी, वो मेजर नहीं थी, वो तब भी सिंध के लॉ के मुताबिक चाइल्ड मैरिज थी।
देन हाउ वाज शी सेट एट लिबर्टी? एक सवाल पैदा होता है ना, मेजॉरिटी तो उसने रीच नहीं की थी, तो इट इज अ लिटिल अनफॉर्चुनेट। और इसमें मेरे ख्याल में बहुत बड़ी वजह जो है लैक ऑफ ट्रेनिंग भी है। दूसरा एक और देखें, अब हम बच्चे तो नहीं बिठा सकते बेंच के ऊपर, बट आपको खौफ नहीं आता बेंच की वो क्या कहते हैं प्रोपोर्शंस देख के, या वो जिसको हम जेंडर बैलेंस कहते हैं? हाउ मेनी women are holding the seat of the or at the honorable bench in Quetta, in Lahore, in Multan, in Bahawalpur, in Nawabshah, Sakkar, Hyderabad, Peshawar, Aptabad, wherever the high court benches are. सुपीरियर जुडिशरी के अंदर कितनी खवातीन है जिनको हमने एलिवेट किया है? सुप्रीम कोर्ट में जाके पहली बार पाकिस्तान के अंदर हम लोग भंगड़ा डाल रहे हैं कि जी ये खातून जज आ गई। ये हमारे लिए खुशी की बात है या हमारे लिए शर्म की बात है कि इट टुक अस 75 years टू गेट हियर? तो जब एक दूसरे पर्सपेक्टिव ही नहीं आ रहा स्टेप लिया तो है जी, मैं कह रही हूँ चले इवन आफ्टर सो मेनी इयर्स एक हुआ तो है कुछ पॉजिटिव ना, बस ये अब जब दूसरा पर्सपेक्टिव ही नहीं आ रहा जेंडर का, बिकॉज देखें चाइल्ड के साथ जेंडर वायलेंस के क्राइम्स ही रिलेट होते हैं, तो जब दूसरा पर्सपेक्टिव ही नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने कहा ना जजेस अपनी पर्सनल वैल्यूज लेके आते हैं, तो कम से कम उन पर्सनल वैल्यूज में डाइवर्सिटी लेके आए, जेंडर के नाम पे डाइवर्सिटी लेके आए, रिलीजन के नाम पे डाइवर्सिटी लेके आए, क्लास के नाम पे डाइवर्सिटी लेके आए। सारे बैरिस्टर ही अगर जज बन जाएंगे तो फिर तो एलीट क्लास के फैसले होंगे ना। तो गरीब वकीलों को भी जज बनाइए, उनके भी पर्सपेक्टिव आने चाहिए, जो कि माशरे के फैसले कर रहे हैं ना, माशरे के लोग पिटिशंस लेके आते हैं। हेलो जी मेरी आवाज आ सकती है, आ रही है? जी आ रही है जी। जी 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 फहद साहब, मेरा आपसे एक सवाल है। व्हेन इट कम्स टू चाइल्ड मैरिज देयर आर टू सेट्स ऑफ सर्कमस्टांसेस। एक वो चाइल्ड मैरिज होती है, फर्ज करें जो आपके लीगल गार्डियन या आपके नेचुरल गार्डियन या आपके माँ बाप करते हैं। एक हम इस पे भी मैं आपका कमेंट लेना चाहूंगी। व्हाट अबाउट सेल्फ इम्पोज चाइल्ड मैरिज? अगर एक 14 साल की बच्ची खुद जाके शादी कर ले, फर्ज करें, या 13 साल की बच्ची, तो आप उस सिलसिले में मैं आपका कमेंट्स चाहूंगी कि मतलब हाउ डू वी ड्रॉ कंपैरिजन ओवर देयर? तो इस पे अगर आप कोई कमेंट प्लीज दे सकें। मैडम एज पर माय अंडरस्टैंडिंग तो वो मैरिज वैलिड ही नहीं है, इट्स अवॉइड मैरिज। अबडक्टी है, किडनैपिंग का केस है, और उसमें वो मैरिज को हम वैलिडेट कर नहीं सकते अंडर द लॉ। मैं जो बात करना चाह रही हूँ, इफ एन अंडर एज चाइल्ड आउट ऑफ हर ओन फ्री विल मैरीज समवन, तो उस पे आप क्या कमेंट देंगे? वो भी तो देखिए चाइल्ड मैरिज एक्ट में आ जाता है। चाइल्ड मैरिज तो है अंडर द लॉ, नहीं, चाइल्ड मैरिज दैट मैरिज इटसेल्फ इज इनवैलिड अंडर द लॉ। चाइल्ड मैरिज एक्ट में कैसे आएगी जी? वो तो माइनर है, माइनर कैन नॉट एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट ऑन हर ओन। अगर वो शादी होगी या तो वो थ्रू गार्डियन होगी या थ्रू आई थिंक वो इंटाइसिंग बेस जस्टिस केस में वो होगी। तो अगर वो चाइल्ड है तो फॉर हर मैरिज एटलीस्ट शी वुड बी नीडिंग ए गार्डियन सर्टिफिकेट। कोई ना कोई गार्डियन होगा तो वो सर्टिफिकेट उसकी बिहाफ पे शादी हो सकेगी, अदरवाइज वो शादी करने के लिए कॉम्पिटेंट भी नहीं है। अंडर मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट अगर 16 साल के लिए भी आप रखें तो भी वो कॉम्पिटेंट ही नहीं। एंड व्हेन यू से कि द चाइल्ड जो सॉरी ये इस्लामिक लॉ में मैरिज जो है इट्स ए कॉन्ट्रैक्ट, सिविल कॉन्ट्रैक्ट है, तो सिविल कॉन्ट्रैक्ट की जो रिक्वायरमेंट्स है वो तो पूरी नहीं हो रही। तो आई अंडरस्टैंड वो वैलिड मैरिज है ही नहीं, और क्रिमिनल केस that marriage itself will be valid in the eyes of law. जी फहद साहब, before we conclude, मैं आपसे कोई concluding remarks चाहूंगी. What do you think possible reforms can take place in this area? And just आप अगर तो जो भी conclusion में Madam, I understand. I would be very humbly suggesting that our superior judiciary should take care of it, should take notice of this in uniformity. इसके ऊपर काम होना चाहिए। जो judgments हमारे पास हो रहे हैं वो सिर्फ बच्ची की बलूगत को नहीं देखना चाहिए। Only puberty does not matter in marriage. She needs to be major as well. आकिल और बालिग का कॉन्सेप्ट है, तो उस चीज़ को कंसिडर करना चाहिए। जो ये फ्लड गेट खुल गया है हमारे यहाँ रनअवे मैरिज का, इसको रोकने के लिए ज़रूरी है कि सुपीरियर जुडिशरी इस तरह की इंटरप्रिटेशंस करे जो सिर्फ बच्ची को कोर्ट में पेश होके मैं आकिल हूँ, मैं बालिग हूँ, अपनी मर्जी से शादी कर ली, उसके ऊपर नहीं चलना चाहिए जब तक उसको डॉक्यूमेंट्री वैलिडेशन हो। और मेरी अंडरस्टैंडिंग ये कि अगर हेबियस कॉर्पस की पिटीशन में कोर्ट में मामला आता है तो वो जायज़ के ओसिफिकेशन टेस्ट का हुक्म दे
उसे चाहिए कि वो वैलिडेट करे निकाह को या उसके जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस हैं। जैसे आपने पहली बात कीजिए, क्यों ना निकाह खाम को इसके ऊपर रजिस्टर करना चाहिए। आप देख लीजिए आज तकरीबन 4 महीने गुजर चुके हैं, निकाह इस लड़की का जो दुआ ज़रा का निकाह है, ये आज तक रजिस्टर नहीं हुआ। तो ये रूल ऑफ द कोर्ट बनना चाहिए कि इनके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सैंक्टिटी अटैच है, दैट शुड बी कंसीडर्ड इंस्टेड ऑफ इंडल्जिंग इनटू दिस ossification test or bone test or physical examination ji. Thank you. Gibran Saab, if I can take some concluding remarks from you as well regarding what possible reforms can take place. जैसा आपने पहले भी फरमाया, consistency in terms of the judgments rendered, ये बहुत valid point था. इसके अलावा आप कुछ और अगर conclusion में remarks देना चाहें, because पाकिस्तान अगर हम international indices देखा जाए, despite our obligations under the International Convention on the Protection of Child Rights, हम अभी भी बहुत नीचे lag करते हैं. So what possible reforms can you suggest possibly in this? लेकिन ये ना रिफॉर्म्स करने से पहले जो माशाल्लाह अभी बहुत अच्छे खूबसूरत कानून जो एक दो सूबे में हम लेके आए हैं, पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट जो है डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से, तो इनका बड़ा अच्छा कानून है। साइकोलॉजिकल अब्यूज़ की बात करता है, इकोनॉमिक अब्यूज़ की बात करता है, यहाँ तक कहता है कि अगर आप अपनी बीवी के चाल चलन पे शक करें और उसको हरासा करें, वो भी डोमेस्टिक वायलेंस है। इतनी वसी आपने डेफिनेशन दी हुई है, मगर जिस मैजिस्ट्रेट के पास आपने कंप्लेंट फाइल करनी होती है उसने कानून पढ़ा नहीं होता। मेरे एक्सपीरियंस में ये है कि मैं जाके अक्सर चाइल्ड मैरिज केसेस में और डोमेस्टिक वायलेंस केसेस में मैजिस्ट्रेट्स को जब कानून पढ़ा रहा होता है और उनकी इनहेरेंट पावर्स उनको पढ़ा रहा होता हूँ, तो उनको लग रहा होता है वो LLB फर्स्ट ईयर के अंदर है, उन्होंने पहले कभी ये कानून नहीं पढ़ा। दूसरी बात ये, अपने एक बात एक टर्म साहब के सामने सवाल रखा था, सेल्फ इम्पोज चाइल्ड मैरिज। देखिए, आपको उसके लिए पहले किडनैपिंग की डेफिनेशन देखनी पड़ेगी। किडनैपिंग की डेफिनेशन है ईदर यू आर टेकन अवे और यू आर इंटाइस्ड अवे। इंटाइस्ड का मतलब है यू कुड बी लेव्ड, यू कुड बी सीड्यूस्ड, यू कुड बी, जिसको हम बरगलाना या बहकाना कहते हैं। और उसमें अगर आपको अपनी गार्डियन की सेफ कीपिंग से, अपनी गार्डियन की इजाज़त या मर्जी के बगैर रखा जाए, बेशक बच्चे की मर्जी हो, but the thing with 361 PPC is that the only consent which it focuses on is the consent of the guardian, not the consent of the child. तो अगर वालिदैन की मर्जी नहीं है और बच्चा दूसरे घर में पड़ोसी के चला गया है और वहाँ पे खुशी से रह रहा है और पड़ोसी भी उसे वापस घर लेके नहीं आ रहा और वालिदैन की रजामंदी नहीं है, तो इट विल बी अबडक्शन एज अ रिजल्ट ऑफ इंड्यूसमेंट। तो कोई भी सेल्फ इम्पोज मैरिज होगी वो दरअसल एक अबडक्टी की हो रही होगी। तो वो ऐसे ही सवाल फिर ये आता है कि क्या हम एक मुगलिया की शादी एक अगवाकार से होना नॉर्मल समझते हैं? क्योंकि सेल्फ इम्पोज जो है ना, वो सेल्फ ही पहले बात है कि हम सेल्फ की वर्थ कब रियलाइज कर रहे हैं, किस एज के ऊपर हम कंसेंट रियलाइज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, 14 साल का लड़का, 13 साल का लड़का जो 14 का भी नहीं हुआ है, 13 साल 11 महीने का है, वो अपनी मर्जी से कहीं घर से बाहर नहीं जा सकता। वो किसी के साथ खुशी से चला गया और दूसरा आदमी उसे लुटा नहीं रहा, तो वो किडनैप है। फर्क ये जरूर है कि लड़के और लड़की की उम्र में फर्क किया हुआ है, मेरे ख्याल में बराबर होनी चाहिए। लड़के की उम्र भी 16 साल तक आप करें सवाले से, इसको इक्वल आप ट्रीट करें। हमने एक्चुअली अपनी लैंग्वेज ना लॉ के जगह जगह वनरेबल लड़कियों की उम्र यूं करके डिस्पैरिटी पैदा की है कि जैसे लड़कियां भोली होती हैं वो बड़ी उम्र में होंगी, मेरे ख्याल में लड़के भी भोले होते हैं, उनके लिए भी उम्र। तो ये इंटरप्रिटेशन का बहुत मसला है। और हमारे यहाँ एक और कि देखिए, आधे से ज़्यादा इस माशरे की जो लीगल अवेयरनेस है वो या खबरें पढ़ के होती है, जब सियासतदान बैठ के आइन डिस्कस करते हैं, अनफॉर्चुनेटली उसमें ह्यूमन राइट्स वाला चैप्टर डिस्कस नहीं होता, उसमें असेंबली कैसे डिसॉल्व होनी और कैसे बनानी ये सब डिस्कस हो रहा होता है। फंडामेंटल राइट्स भी डिस्कस नहीं होते हैं। हम कानून देखते हैं, सीखते हैं लीगल शोज से, मगर वो भी सारे अंग्रेजों के बनाए हुए हैं, तो हमारे सिस्टम से कोई लेना देना उनका नहीं है। बॉस्टन लीगल देख लें या सूट्स देख लें। फिर रह जाती है बॉलीवुड की फिल्में। बॉलीवुड की फिल्मों में किडनैपिंग हमेशा चीखते चिल्लाते हुए होती है, बॉलीवुड की फिल्मों में सेक्सुअल वायलेंस हमेशा चीखते चिल्लाते हुए होता है। तो ये स्टुपिडिटी होती है जुडिशरी के लेवल के ऊपर कि जी वायलेंस के निशान नहीं है लड़की की बॉडी पे, तो ये रेप नहीं हुआ है। फोटो के निशान नहीं है लड़की की बॉडी पे, इसका मतलब इसने रेजिस्ट नहीं किया है। दैट होल एलिमेंट ऑफ ट्रॉमा, अ पर्सन गोइंग इनटू अ स्टेट ऑफ शॉक एंड नॉट इवन बीइंग एबल टू रिएक्ट। लाइक आई सेड, फिल्मों को देख के अगर आप क्राइम सीन इमेजिन करोगे and if that is your grasp of the matter, it's shameful, it's very alarming.
Thank you so much. This had been quite an interactive and insightful session today और बहुत कुछ हमें अपने ऑनरेबल स्पीकर से सीखने को मिला। लॉज में जितने भी लूप होल्स वगैरह हैं उनको काफ़ी हाईलाइट किया। होप सो इस केस की प्रोसीडिंग्स भी एंड पे ही पहुंच गई हैं एंड ये जितने भी पॉइंट्स को हाईलाइट किया लॉज वगैरह ये हमें फ्यूचर गवर्नमेंट्स में काफ़ी मतलब इन चीज़ों को इस्टेब्लिश करने में हेल्प करेंगी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। प्लेटफॉर्म से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, सलमान साहब से मैं बात नहीं कर सका। आई बिलीव गिवन द फैक्ट दैट ही इज पार्ट ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, there should be some directions passed that PTA and PEMRA both should make it mandatory that आपके जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो चाइल्ड अबडक्शन और चाइल्ड मैरिज के हवाले से जो लॉज हैं उन पे अवेयरनेस करें। यूट्यूब पे किसी सेक्शन पे ऐड आ सकते हैं, कोई नुकसान नहीं होगा। और पेमरा के ऊपर इसके ऊपर जो है मैंडेटरी प्रोग्रामिंग या PSMs होने चाहिए। हम अपने नौजवान बच्चे बच्चियों को बताएं कि उनकी वो क्या उम्र है जिसपे वो घर से बाहर जा सकते हैं, अगर कोई शादी होती है उसके क्या संगीन नताइज निकलेंगे, सो दैट आवर चिल्ड्रन कैन आर नॉट lured into or made fools of and end up becoming victim of crimes. जी, यहाँ पे मैं एक और बात भी ऐड करना चाहूंगी, नॉट इन टर्म्स ऑफ चाइल्ड मैरिज लॉज। आई थिंक एक जनरल एक इनिशिएटिव लेना चाहिए इन टर्म्स ऑफ ऑल लॉज, इनहेरिटेंस लॉज। मैंने बीइंग अ प्रैक्टिसिंग बैरिस्टर मैंने देखा है भाई बहन से पावर ऑफ अटर्नी साइन करवा देते हैं, 10 साल बाद बहन को पता चलता है कि उस पावर ऑफ अटर्नी के बेसिस पे सारी प्रॉपर्टी अपने नाम पे ट्रांसफर कर ली है। तो आई थिंक एक जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ ऑल द लॉज, बी इट इनहेरिटेंस, बी इट चाइल्ड मैरिज, ऑल द लॉज जो एक आम आदमी औरत हो या मर्द हो एवरीडे बेसिस पे फेस करता है। रेंट लॉज हो गए, मुख्तलिफ कवानीन पे एक अवेयरनेस सेशन, बिकॉज बात आपने बहुत अच्छी की, लॉज एग्जिस्ट करते हैं, वी हैव लॉज और ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, इट कम्स ऑन देयर इम्प्लीमेंटेशन एंड इट कम्स ऑन देयर अवेयरनेस। ना लोगों को इम्प्लीमेंट करने का तरीका आता है, ना लोगों को अवेयरनेस आता है। एक प्रोग्राम होना चाहिए कि FIA किस तरह रजिस्टर कराते हैं, अगर पुलिस वाला आपकी FIA रजिस्टर नहीं करता, व्हाट पॉसिबल रेमेडीज यू हैव अंडर लॉ। आप एक आम बंदे ये सवाल करें उसको तो पता ही नहीं चलेगा कि he can possibly move a by say by C if the police has refused to register the case. So I think general awareness होनी चाहिए इस सिलसिले में। आपको ये भी नहीं पता कि जब थाने जाते हैं तो वो कौन सा अफसर है जो FIR काटता है, वो वक्त दूसरे कमरे में बैठ के 4 घंटे, उसको ये नहीं पता कि हेड मोरर है जो FIR काटेगा, उसके पास जाना है आपने। एग्जैक्टली, और रिफ्यूजल के बाद उसके पास क्या पॉसिबल रेमेडीज है। तो आई थिंक इन जनरल यू राइट, पेमरा एंड पॉसिबल अदर जो फेडरल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दे कैन प्ले अ वेरी पिवटल रोल इन दिस रिगार्ड। बिल्कुल जी, शुक्रिया जी, थैंक यू।